Hello guys, welcome to Gate Concept. In previous lecture we have seen about the class B commutation, that is the current commutation circuit. In this lecture, in this session we will discuss about the class D, that is the voltage commutation circuit. So let's start the session. Class D commutation circuit. This is also called voltage commutation circuit. Voltage commutation circuit. So this is very important topic. This is again a very important topic. As far as GATE examination concerned, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लगातार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कम्यूटेशन सर्किट से वो वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट से ही आते हैं. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द सर्किट एज this is called the main thyristor. In this circuit, this is called the main thyristor, and again one thyristor is connected. One thyristor is connected parallel across this thyristor. This is called the auxiliary thyristor. ये auxiliary thyristor कहलाता है. Fine. This is called the auxiliary thyristor. Here one capacitance is connected. यहाँ पे कैपेसिटेंस हम लगाते हैं. Yes, perfect. And then one inductor is here connected. And a diode is connected in series with this inductor. Here is the one diode which is connected in series with this inductor. And supplies Vs. Supplies Vs. The freewheeling diode is also connected parallel to the load. That is the parallel to the load. And finally, this freewheeling diode is connected parallel across this load. And finally, there is a load connected. Now, this is the circuit diagram for the voltage commutation circuit. DC source voltage of magnitude Vs here. This one is called the main thyristor. Main thyristor. I am denoting this thyristor as Tm. This is called the main thyristor. And this is called the auxiliary thyristor. I am denoting this thyristor as Ta. This one is the diode.
this one is the diode, this one is the inductor, this one is the capacitor, this one is the capacitor. And let us suppose the direction of current across the capacitor is in this way, and let's suppose the direction of the current in this way, and let denote the current to be, let denote the current to be IC here. And let us suppose the voltage the initial voltage across the capacitor is Vs. The two things are to be taken as assumption. First thing is that assumption. First assumption is, let us suppose initial voltage across the capacitor is Vs. Second assumption is I naught current is constant. I naught current is constant. What is I naught? I naught is the load current. I naught is the load current. What is I naught? I naught is the load current which is assumed to be a constant. जिसे हमने constant assume कर रखा है. This is the current I naught which is flowing in the load and it is almost constant. This is freewheeling diode FT. Okay, fine. Now what happens? सबसे पहले सर्किट को हम लोग ऑपरेट करते हैं. तो इस पूरे सर्किट को हम दो मोड में डिवाइड करेंगे, मोड 1 एंड मोड 2. मोड 1 में एट द वेरी फर्स्ट मोड वी आर ट्रिगरिंग द सर्किट फॉर द मेन थायरिस्टर. हम लोग मेन थायरिस्टर को ऑन करेंगे. वी विल टर्न ऑन द मेन थायरिस्टर. We will turn on the main thyristor in next slide. Then what will happen if we turn on the main thyristor? See the circuit diagram. See the circuit diagram. What will happen when the main thyristor is on? When the main thyristor is on, then it is obvious that the main thyristor can be replaced by a short circuit. Main thyristor can be replaced by a short circuit, and this one is the capacitance. This one is the capacitance. Main thyristor is replaced by a short circuit because we are turning on the main thyristor. Because we have turned on the main thyristor. Perfect. TA is not on. TA is not on. TA को अभी हमने trigger नहीं किया है. We are turning the main thyristor TM such that TM can be replaced by a short circuit. Now our assumption is the voltage across the initial voltage across the capacitor is Vs. It means the voltage across the capacitor is Vs, means capacitor is initially charged. Capacitor is initially charged by a voltage Vs and the output current is constant. So in this circuit, this one is the diode, this one is the inductor. यहाँ पे inductor लगा हुआ था and then diode लगा हुआ था. Fine. This one is the diode. और फाइनली एक लोड को हमने कनेक्ट किया हुआ था. सो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम. ये एक्चुअल डायग्राम है जब हम मेन थायरिस्टर को ऑन करते हैं. मेन थायरिस्टर इज रिप्लेसिंग बाय शॉर्ट सर्किट, is replaced by a short circuit. Then what will happen to the capacitor? Capacitor is initially charged by a voltage Vs. अब यहाँ पे कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा. नाउ द कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग and in mode 1 the capacitor will discharge from the voltage Vs to minus Vs. It means we can say initially the voltage across the capacitor is plus to minus. Now when the capacitor will start decreasing, its polarity will get reversed, and now we can say at the end of mode 1 the capacitor will completely discharge.
capacitor will completely discharge and the polarity of sign will look like this. Okay, this is the inductor, this is the inductor, this is the diode, this is the diode. तो कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज will start discharging, will start, it will discharge, capacitor will discharge and the direction of current will be like this, और करंट जो है इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा, इन द सेम डायरेक्शन व्हाट वी हैव assumed the direction of current. इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। और अगर हम देखें सर्किट को तो इस सर्किट में L है, C है, L है, C है और डायोड है। एंड वी नो इन LC सर्किट विद डायोड, इन LC सर्किट विद डायोड the current, the discharging current is, the discharging current is, that is the Vs under root CL sine of omega naught t. This is the expression of current. This is the expression of the current, that is the Vs under root C upon L sine omega naught t, and we know omega naught equal to 1 upon under root LC. Perfect, fine. Initial voltage across the capacitor is Vs. So there is a Vs under root C upon L sine omega naught t. So initially when the main thyristor is getting on, जब main thyristor on होगा तो current ये करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना, करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा एंड द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, है ना, कैपेसिटर विल डिस्चार्ज एंड इट्स पोलैरिटी गेट रिवर्स फ्रॉम प्लस माइनस टू प्लस। ओके, तो दिस इज ऑल द, ये सारी कहानी जो है, ये सारी कहानी मोड 1 की है, ये सारी कहानी जो है ये मोड 1 की है। तो हम लोग वेवफॉर्म पे आते हैं, है ना, वेवफॉर्म पे आते हैं, कुछ वेवफॉर्म बनाते हैं इसकी। तो अगली स्लाइड में वेवफॉर्म देखते हैं। आवर आउटपुट करंट इज कांस्टेंट, आउटपुट करंट तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। दिस इज द आउटपुट करंट आई नॉट। लेट अस सपोज द मोड 1 टू बी, यहाँ से लेके यहाँ तक हम मोड 1 एज्यूम कर लेते हैं कि ये मोड 1 है। मोड 1 कहने का मतलब व्हेन द मेन थायरिस्टर इज ऑन, व्हेन द मेन थायरिस्टर इज ऑन, सपोज यहाँ तक, ठीक है। और मोड 2, मोड 2 हम शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। सपोज करो मोड 2 यहाँ से शुरू होता है, दिस इज द मोड 2, दिस इज मोड 2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वेवफॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, करंट अक्रॉस द कैपेसिटर। ये मोड 1 है और यहाँ से सपोज करो मोड 2 शुरू होता है, ठीक है। दिस इज द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर। नाउ यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है इन दिस एलसी सर्किट विद डायोड, initially when the mode 1 is operating, at the same time we are saying the main thyristor is on, जब मेन thyristor मेरा ऑन होगा, अगर मोड 1 की बात करेंगे तो करंट जो फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा Vs अंडर रूट सी अपॉन एल साइन ओमेगा नॉट टी, वेर ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। लेकिन पाई के बाद क्या होगा, पाई के बाद क्या होगा, पाई के बाद, पाई के बाद जो है, पाई के बाद डायोड जो है मेरा, डायोड रिवर्स स्टेट में चला जाएगा एंड डायोड विल नॉट कंडक्ट सच दैट करंट विल बी जीरो। तो आईसी जो है, आईसी जो करंट है वो एलसी सर्किट डायोड में कब तक फ्लो करेगा, अप टू पाई तक,
अप टू पाई तक फ्लो करेगा। ठीक है, तो सपोज करो मोड 1 एग्जिस्ट कर रहा है फॉर द ड्यूरेशन T1, फॉर द ड्यूरेशन T1, और मोड 2 की जो कहानी है, मोड 2 की जो कहानी है वो T2 के बाद शुरू हो रही है, T2। ठीक है, नाउ व्हाट शुड बी द आईसी, आईसी का वेवफॉर्म कैसे दिखना चाहिए? जब तक मोड 1 है तो ये साइनसोइडल वेवफॉर्म होगा, ये साइनसोइडल वेवफॉर्म होगा, बिकॉज वी नो फ्रॉम द एक्सप्रेशन, फ्रॉम द इक्वेशन दैट आई सी इक्वल टू वी एस अंडर रूट सी अपॉन एल साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी अप टू पाई। सो द वेवफॉर्म विल लुक लाइक दिस इज द वेवफॉर्म फॉर द आई सी। ठीक है, ये सपोज करो 0 है, ये पाई है। ठीक है, पाई के बाद ये कंडक्ट नहीं करेगा, डायोड रिवर्स स्टेट में चला जाएगा, डायोड विल नॉट कंडक्ट एंड द करंट विल बी जीरो, एंड द करंट विल बी जीरो। ठीक है, मोड 2 की हम कहानी देखेंगे कि मोड 2 में आईसी का वेवफॉर्म कैसा दिखेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं करंट अक्रॉस द मेन थायरिस्टर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, करंट अक्रॉस द मेन थायरिस्टर। नाउ मेन थायरिस्टर के अलोंग जो करंट फ्लो करेगा मोड 1 में, मोड 1 में जो करंट फ्लो करेगा, ये मोड 1 की कहानी है। अगर हम यहाँ केसीएल परफॉर्म करें तो इधर जो करंट जाने वाला है वो आई नॉट है विच इज़ कांस्टेंट, और इस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है वो आई सी टी जा रहा है ना। और ये मेन थायरिस्टर मेरा ऑन है, इसको हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया है। तो इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं जो करंट फ्लो करेगा मेन थायरिस्टर के अलोंग वो कितना करेगा, मेन थायरिस्टर के अलोंग जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा आई नॉट प्लस आई सी टी करेगा, आई नॉट प्लस आई सी टी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द मेन थायरिस्टर इज गेटिंग ऑन, जब मेन थायरिस्टर मेरा ऑन हो रहा है, ठीक है, उस केस में मेन थायरिस्टर के अलोंग जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा आई नॉट प्लस आई सी टी, वेर आई नॉट इज कॉन्स्टेंट एंड आई सी टी इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द एल सी सर्किट विद डायोड। परफेक्ट, तो इट मीन्स वी हैव द वेव फॉर्म, हमारे पास जो वेव फॉर्म होगा कुछ इस तरह का होना चाहिए। मोड 1 की जब तक कहानी है तब तक मेरे पास जो करंट है वो आई नॉट है प्लस आई सी टी है। तो आई नॉट हमारे पास, हमने ये एज्यूम किया था आई नॉट करंट, तो इससे थोड़ा ऊपर होगा, तो इट मीन्स वी हैव लाइक दिस। तो कुछ इस तरह का वेव फॉर्म मेरे पास दिखेगा, जीरो, दिस इज पाई इन मोड 1, इन मोड 1। ये सपोज करो आई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई नॉट प्लस आई सी टी, तो आई नॉट प्लस आई सी टी आई नॉट से ऊपर होगा, है ना, साइनसोइडल वेवफॉर्म है। तो कुछ इस तरह का वेवफॉर्म दिखेगा मेन थायरिस्टर के अलोंग का करंट का, व्हेन ऑपरेटिंग इन मोड 1 व्हेन द मेन थायरिस्टर इज गेटिंग ऑन। ठीक है, और जब तक हम मोड 2 शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम मोड 2 शुरू नहीं करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि मेन थायरिस्टर के अलोंग आफ्टर पाई क्या होगा, आफ्टर पाई ये अगेन आई नॉट के बराबर हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। क्यों आई नॉट के बराबर हो जाएगा? ये जो करंट है ये आई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पाई के बाद हमने पहले भी कहा था कि डायोड मेरा रिवर्स स्टेट में चला जाएगा, पाई के बाद डायोड मेरा रिवर्स स्टेट में चला जाएगा, और पाई के बाद डायोड कंडक्ट नहीं करेगा एंड द करंट विल बी जीरो। सो द ओनली करंट इज द ओनली करंट इज द ओनली करंट इज आई नॉट, द ओनली करंट इज आई नॉट। ये तो करंट जीरो हो गया, पाई के बाद ये करंट जीरो हो जाएगा, है ना। तो आई टी एम किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट के बराबर हो जाएगा। सो जब तक मोड 2 की कहानी शुरू नहीं होती है मेन थायरिस्टर के अलोंग जो करंट फ्लो करेगा वो आई नॉट ही करेगा। ये डायोड का पी है और ये डायोड का एन है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड we will see the waveform for the voltage across the capacitor and output voltage.
Initially, voltage across the capacitor is Vs. Initially, the voltage across the capacitor is Vs. ठीक है, और मोड वन के एंड पे, मोड वन के एट द एंड ऑफ मोड वन वी आर गेटिंग माइनस ऑफ Vs, माइनस ऑफ Vs, and we know voltage across the capacitor, voltage across the capacitor is given by the equation by a cosine waveform, by a cosine waveform. So it will follow the it will follow the cosine waveform, and it will gradually decrease from Vs to minus Vs. So I think the waveform will like this. सपोज करो यहाँ से यहाँ तक मोड वन है, मोड वन चल रहा है, तो एट द एंड ऑफ मोड वन we have minus Vs as the voltage across the capacitor, because capacitor is getting fully discharged. In this way. Perfect. Now it will continue to minus Vs until and unless mode 2 start. ये continue minus Vs को maintain करने की कोशिश करेगा जब तक mode 2 शुरू नहीं होता है. And we are defining the mode 2 from here only. Perfect. Fine. ये मोड 2 है, यहाँ से मोड 2 की कहानी शुरू होती है ना, यहाँ से मोड 2 की कहानी शुरू होती है. वी ऑल नो मोड 2. परफेक्ट. फाइन. और यहाँ से यहाँ तक एक बार और बना लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मोड वन को रिप्रेजेंट कर रहा है. मोड वन. परफेक्ट. फाइन. और लास्ट वेवफॉर्म बनेगा, लास्ट वेवफॉर्म बनेगा आउटपुट वोल्टेज का, लास्ट वेवफॉर्म बनेगा आउटपुट वोल्टेज का. तो इनिशियली मोड वन की अगर बात करें, अगर हम मोड वन की बात करें, मोड वन की अगर हम बात करें, तो मोड वन में जब मेन थायरिस्टर ऑपरेट करता है, जब मेन थायरिस्टर ऑन है और जब मेन थायरिस्टर को हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है, उस केस में हम देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा, आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, Vs के बराबर होगा. दिस इज Vs. सो आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू Vs, और ये Vs ही रहेगा जब तक मोड 2 की कहानी शुरू नहीं होती है. ठीक है, output voltage will be equal to the Vs. One can easily say by seeing this way, by seeing this circuit diagram, that output voltage will be equal to Vs. Perfect. आउटपुट वोल्टेज विल बी Vs. ये Vs ही रहेगा जब तक मोड 2 शुरू नहीं होता है. तो मोड 2 के बारे में देखेंगे कि मोड 2 में क्या हो रहा है करके. दिस इज Vs. Perfect. This is existing for time t1, t2. This one is the t2. चलो, और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे TM को हम ऑन किए हुए थे, मेन थायरिस्टर को हमने ऑन किया हुआ था. ठीक. तो आई थिंक इतना तक, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को. इसके बाद बात करते हैं मोड 2 की. मोड 2 की हम बात करते हैं. इसके बाद हम लोग मोड 2 की बात करते हैं. मोड 2. In the next slide we will see here. मोड 2. तो मोड वन में हमने देखा कि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि जब मेन थायरिस्टर ऑन है, जब मेन थायरिस्टर ऑन होता है,
वहाँ पे मेन थैरिस्टर के अलॉन्ग जो करंट फ्लो करता है वो कितना करता है, आई नोट प्लस आई सी टी. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. This is really very important because in competitive examination they are asking about the main current when the main thyristor is on, then what should be the main current. The main current is I naught plus ICT, that is the load current plus ICT. Perfect. Now mode 2. मोड टू कब स्टार्ट होगा, जब एक्सिलरी थ्रस्टर को हम लोग ऑन करेंगे. मोड टू स्टार्ट कब होगा, जब एक्सिलरी थ्रस्टर को हम ऑन करेंगे. सी हियर इन दिस डायग्राम व्हेन द टीए विल गेट ऑन, जब टीए को हम ऑन करेंगे, जब टीए को हम ऑन करेंगे तब मोड टू की कहानी शुरू होती है. ठीक है. तो एक बार जब कैपेसिटर जो है, एक बार जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, यहाँ देखिए, जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि मेन थैरिस्टर विल गो इनटू द रिवर्स स्टेट एट द एंड ऑफ मोड वन. एट द एंड ऑफ मोड वन, मोड वन के एंड पे जो मेन थैरिस्टर जो कनेक्ट कर रहा था अब वो कनेक्ट नहीं करेगा, वो रिवर्स स्टेट में चला गया. लेकिन इस प्लस की वजह से, इस प्लस की वजह से, इस प्लस की वजह से ये जो डायोड है, ये डायोड भी मेरा रिवर्स स्टेट में चला जाएगा. ये भी अब तक ऑन था मोड वन में, ये ऑन था, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, जब इसकी पोलैरिटी -2 प्लस हो जाएगी तो ये मेन थैरिस्टर भी मेरा ऑफ हो जाएगा, मेन थैरिस्टर भी मेरा ऑफ हो जाएगा, और इस प्लस की वजह से डायोड भी मेरा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ना, प्लस की वजह से डायोड का जो कैथोड है वो कनेक्ट हो जाएगा प्लस से. देन वी कैन से डायोड विल गो इनटू द रिवर्स स्टेट. तो दोनों के दोनों डिवाइस, दैट इज द वन इज द थैरिस्टर, दैट इज द मेन थैरिस्टर, एंड अदर इज द डायोड, दोनों के दोनों डिवाइस जो है मेरे कंडक्ट नहीं करेंगे, रिवर्स स्टेट में चले जाएंगे. तब हम टीए को ऑन करेंगे, एक्सिलरी थैरिस्टर को हम ऑन करेंगे, एंड द सर्किट विल लुक लाइक एज. तो हमारे पास जो सर्किट दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा. मेन थैरिस्टर मेरा ऑफ हो चुका है क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज. और यहाँ पे टीए को हम ऑन कर रहे हैं, वी आर टर्निंग ऑन द एक्सिलरी थैरिस्टर. ठीक है. तो जैसे हम टीए को ऑन करेंगे, एक्सिलरी थैरिस्टर को ऑन करेंगे, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय ये शॉर्ट सर्किट. परफेक्ट. मेन थैरिस्टर इज गेटिंग ऑफ. Again, the diode will not conduct because diode is also getting reverse biased. ये डायोड भी मेरा रिवर्स स्टेट में चला गया है, डायोड भी मेरा रिवर्स स्टेट में चला गया है. और यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है. परफेक्ट. ये सोर्स वोल्टेज है, दैट इज वी एस, दैट इज वी एस. और फाइनली हम लोड को यहाँ कनेक्ट करते हैं. दिस इज आवर लोड. और इस लोड में करंट कांस्टेंट है, दैट इज आई नॉट. मेरे पास दो डिवाइस कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो रिवर्स स्टेट में चलेंगे. वन इज द मेन थैरिस्टर एंड वन इज द डायोड. और यहाँ पे जो पोलैरिटी है, यहाँ पे जो पोलैरिटी है कैपेसिटर की, वो है कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है, ये -2 प्लस है ना, कम्प्लीटली ये डिस्चार्ज हो चुका है. और मोड 2 में हम टीए को ऑन कर रहे हैं, टीए को ऑन करेंगे तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय शॉर्ट सर्किट. नाउ अब इस सर्किट में क्या होगा, अगेन अगेन इसके ऑन होने की वजह से, इसके ऑन होने की वजह से अगेन जो कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर विल चार्ज, विल स्टार्ट चार्जिंग. ये चार्जिंग स्टार्ट करना शुरू करेगा. क्यों? क्योंकि जो ये पाथ मिल रहा है ना, जो ये पाथ मिल रहा है, सी हेयर, ये अगेन वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है इस पाथ में, अगेन वोल्टेज सोर्स से ये कनेक्टेड है इस वाले पाथ में.
ठीक है। इस वाले पाथ में कैपेसिटर जो है वो क्या है, कैपेसिटर कनेक्ट हो चुका है वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि मेन थ्रेस्टर मेरा ऑफ है, लेकिन कैपेसिटर इज अगेन चार्ज वे फुल वोल्टेज फीस। अब ये चार्जिंग होना शुरू करेगा और ये अगेन जो है फुल वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, है ना। और इसकी जो पोलरिटी है, अब इसकी जो पोलरिटी है अगेन ये रिवर्स हो जाएगी, अगेन ये रिवर्स हो जाएगी। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जब ये चार्जिंग होना शुरू करेगा तो कुछ समय के बाद अगेन इट विल गेट टू ए फुल चार्ज बाय अ वोल्टेज Vs एंड द polarity will look like this, that is प्लस टू माइनस। ठीक है, ये कब होगा, एट द एंड ऑफ मोड टू के एंड पे होगा ये हो जाएगा एट द एंड ऑफ मोड टू, एट द एंड ऑफ मोड मोड टू। परफेक्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर अगेन चार्जेस टू ए फुल वोल्टेज Vs एंड द पोलरिटी विल लुक लाइक दिस प्लस टू माइनस। तो इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ मोड टू के स्टार्ट में हम कह रहे थे कि कैपेसिटर जो है फुली डिस्चार्ज हो चुका है और इसकी पोलरिटी माइनस टू प्लस हमें इस तरह से दिख रही है। ठीक है, तो ये कहानी है मोड टू की। तो ये कहानी है मोड टू की। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, हम एक चीज़ देखेंगे कि मेन थाइस्टर तो मेरा ऑफ हो चुका है, डायोड भी मेरा ऑफ हो गया है, टीए को हम ऑन कर रहे हैं। टीए को ऑन करने की वजह से कैपेसिटर फुल चार्ज होने की कोशिश करेगा, है ना। और एट द एंड ऑफ मोड टू के एंड पे इसकी पोलरिटी प्लस टू माइनस हो जाएगी, ये अगेन फुल चार्ज होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, यहाँ पे दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी तो ये है द मोमेंट व्हेन टीए इज ऑन, जब टीए को हम ऑन करेंगे, द मोमेंट व्हेन टीए इज ऑन, ये टीए है, ये क्या है, ये टीए है, और ये क्या है, टीएम। जैसे हम टीए को ऑन करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ मोड टू व्हेन द टीए विल गेट ऑन, जैसे ही हम टीए को ऑन करेंगे तो जो केवीएल इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी वो आएगी द मोमेंट व्हेन टीए इज ऑन, द मोमेंट when when TA is on, the moment when TA is on, then apply the KVL equation, then one will get minus of Vs। ठीक है, और माइनस ऑफ Vs हो गया। और ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है, कैपेसिटर तो मेरा फुल्ली डिस्चार्ज है, और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस Vs। ठीक है, क्योंकि माइनस टू प्लस होगा एट द स्टार्ट ऑफ मोड टू, एंड at the same time we can say the moment when T is getting on, minus of Vs, and the output voltage is V naught, output voltage is V naught। आउटपुट वोल्टेज मेरा कैसा है, V naught प्लस ऑफ V naught इक्वल टू 0, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Vs। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Vs हो जाएगा। कब हो जाएगा, कब हो जाएगा, at the start of mode 2, at the start of mode 2। Now see in the next slide, when the main thyristor is off, main thyristor तो मेरा ऑफ है, when main thyristor is off, when main thyristor is off, capacitor again charges to full voltage, capacitor again charges to full voltage, charges to full voltage Vs, and its polarity get reverse, and its polarity gets
reverse so that output voltage output voltage tends to zero. Now see this, ये बड़ा important point है. The moment when T is on, the moment when T is on at the start of mode 2, at the start of mode 2, the moment when T is on, जब TA को हम on करते हैं तो and then apply the KVL minus VS and I capacitor fully discharge है तो minus VS plus of V naught equal to 0. Then output voltage is equal to twice of VS. Now here I have written when the main thyristor is off, जब मेरा main thyristor off है कैपेसिटर जो है अगेन अब फुल चार्ज होने की कोशिश करेगा बाय वोल्टेज VS और इसकी जो पोलरिटी है रिवर्स हो जाएगी. ये इसकी बात कर रहा है प्लस टू माइनस एट द एंड ऑफ मॉड 2 है ना. इसकी पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी सो दैट द आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू जीरो. नाउ अप्लाई द KVL इक्वेशन, अप्लाई द KVL इक्वेशन हेयर माइनस ऑफ VS इट ये फुल चार्ज हो गया है, ये फुल चार्ज हो गया है ना. तो प्लस ऑफ VS प्लस ऑफ VS प्लस ऑफ V नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से वी कैन इजीली गेट द आउटपुट वोल्टेज एज ज़ीरो. यहाँ से आउटपुट वोल्टेज जीरो हो गया. तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे लिखा है. when the main thyristor is off, capacitor again charges to full voltage Vs and its polarity get reversed so that output voltage tends to zero. Output voltage I am getting as zero at the end of the mode 2 when the capacitor is full charges to a voltage Vs. तो इसी के आधार पे मोड 2 का वेवफॉर्म हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं. मोड 2 का वेवफॉर्म हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं. अगर मोड 2 की बात करें, अगर हम मोड 2 की बात करें, अगर हम मोड 2 की बात करें तो मोड 2 मेरा यहाँ से शुरू था. तो इनिशियली ये वाला वेवफॉर्म कैसा दिखना चाहिए एट द एंड ऑफ मोड 2, दैट इज द आउटपुट करंट. डायग्राम को देखो. मोड 2 जब शुरू हो रहा है, मोड 2 शुरू हो रहा है, इस सर्किट को देखना है. मोड 2 को जब मोड 2 मेरा शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आउटपुट करंट तो कांस्टेंट ही है. आईसी की अगर हम बात करें तो आईसी कैसा दिखेगा, आईसी कैसा दिखेगा, आईसी मस्ट इक्वल टू आई नॉट. ठीक है, आईसी आईसी जो है करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, वो आई नोट के अपोजिट फ्लो कर रहा है. सो इसके आधार पे हम वेवफॉर्म बना सकते हैं. आईसी का आईसी का वेवफॉर्म बना सकते हैं दैट इज माइनस ऑफ आई नॉट. तो सपोज करो ये माइनस ऑफ मोड टू की कहानी जो है यहाँ तक है, मोड टू की कहानी यहाँ तक है. तो इट मीन्स आईसी जो होगा, आईसी जो होगा यहाँ तक फ्लो करेगा, यहाँ तक. एंड दिस मैग्नीट्यूड इज माइनस ऑफ आई नॉट. ठीक है, करंट तो कांस्टेंट है थ्रू आउट करंट इज कांस्टेंट. नाउ आईटीएम, करंट अक्रॉस द मेन थायरिस्टर, करंट अक्रॉस द मेन थायरिस्टर. जब मोड 2 की कहानी शुरू हो रही है, जब मोड 2 की कहानी शुरू हो रही है तो मेन थायरिस्टर तो मेरा ऑफ है. मेन थायरिस्टर तो मेरा ऑफ है, मेन थायरिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. ये मेन थायरिस्टर ऑफ क्यों हुआ, ये मेन थायरिस्टर ऑफ इसलिए हुआ क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है और इसकी पोलरिटी माइनस टू प्लस दिख रही है एट द स्टार्ट ऑफ मोड 2. परफेक्ट. तो इसीलिए आईटीएम के क्रॉस कोई करंट का वेवफॉर्म नहीं बनेगा मोड 2 में, बिकॉज करंट इज गेटिंग जीरो. करंट जो है वो जीरो के बराबर है. परफेक्ट.
Now the second waveform is voltage across the capacitor. वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कैसा दिखेगा? तो मोड टू को हम लोग यहाँ तक बना लेते हैं, यहाँ तक की मोड टू की कहानी है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर की, कि एट द स्टार्ट ऑफ मोड टू है ना, कैपेसिटर के अलॉन्ग जो वोल्टेज होगा वो माइनस वी एस ही रहेगा। बट सर्किट को देखते हुए ये दिख रहा है, कि ग्रेजुअली धीरे धीरे, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है अगेन कनेक्ट हो गया है वोल्टेज सोर्स वी एस से, तो कैपेसिटर अगेन चार्ज होने की कोशिश करेगा एंड एट द एंड ऑफ मोड टू द पोलैरिटी विल लुक लाइक दिस, दैट इज प्लस टू माइनस। मेन थैरिस्टर मेरा ऑफ है, हो चुका है इसकी वजह से, माइनस टू प्लस की वजह से, क्योंकि इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ मोड टू ये ऑफ था। इस प्लस की वजह से डायोड भी मेरा ऑफ हो चुका था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो एक्सिलरी थैरिस्टर है टी ए है, ये वी एस से डायरेक्ट कनेक्ट है, ये वी एस से डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, क्योंकि टी ए को हम ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे हम टी ए को ऑन कर रहे हैं, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिए शॉर्ट सर्किट से। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो है वी एस से डायरेक्ट कनेक्टेड है, सो कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग एंड द पोलैरिटी will look like plus to minus at the end of mod 2. So we can say here, हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वेवफॉर्म बनाने की बात आई, तो इसको हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे फ्रॉम माइनस वी एस टू प्लस वी एस, लाइक इन दिस वे। ठीक है, इन दिस वे यहाँ का जो वोल्टेज है वो वी एस हो गया, यहाँ का वोल्टेज कितना है, माइनस ऑफ वी एस, तो माइनस वी एस से प्लस ऑफ वी एस की तरफ ये जा रहा है। कैपेसिटर जो है लिनियरली चार्ज हो रहा है, वो लिनियरली चार्ज हो रहा है, ठीक है, लिनियरली चार्ज हो रहा है, इसलिए माइनस वी एस टू प्लस वी एस जा रहा है। तो दिस इज व्हाट द एक्चुअल वेव फॉर्म लुक लाइक इन केस ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। नाउ व्हाट शुड बी द आउटपुट वोल्टेज एट द स्टार्ट ऑफ मोड टू? जब मोड टू शुरू हो रहा था तो उस केस में हम देख रहे थे मोड टू के शुरू पे एट द स्टार्ट ऑफ मोड टू, व्हेन द टी इज ऑन, जब टी ए मेरा ऑन था उस समय आउटपुट वोल्टेज इज ट्वाइस ऑफ वी एस, तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज ट्वाइस ऑफ वी एस था। तो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं आउटपुट वोल्टेज को कि एट द स्टार्ट ऑफ मोड टू द आउटपुट वोल्टेज इज ट्वाइस ऑफ वी एस। ये कितना है, ट्वाइस ऑफ वी एस है, ठीक है। और मोड टू के एंड पे आउटपुट वोल्टेज आई एम गेटिंग जीरो, ठीक है, एट द end of mod 2 the output voltage is 0 when the capacitor is full charge by a voltage Vs. So the waveform will look like twice Vs to 0 in this way, twice Vs to 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म है, आउटपुट वोल्टेज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म, ठीक है। तो ये आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म हो गया, और यहाँ पे हम टी ए को ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे हम टी ए को ऑन कर रहे हैं, इसको भी इंडिकेट कर देते हैं, टी इज गेटिंग ऑन हेयर। तो कुछ this is all about the discussion of the class D commutation, that is the voltage commutation circuit. Now we will derive some important formula point by point. That is first point. Important formula. First, what is the main thyristor current? What is the maximum main thyristor current? What is the peak main thyristor current when the main thyristor is conducting? That is I naught Vs under root CL। तो मैक्सिमम के बारे में बात कर रहे हैं,
तो साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कब होगा, ओमेगा टी 90 डिग्री पे। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, this is the maximum value of main current in case of the main thyristor when the main thyristor is operating, when the main thyristor is getting on. Second point, what should be the maximum current across the auxiliary thyristor? What should be the maximum current across the auxiliary thyristor? I think this should be I naught. जब टी ए मेरा ऑन है, जब टी ए मेरा ऑन है, तो हम देख रहे हैं कि इस केस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई नॉट फ्लो कर रहा है. दिस इज द मैक्सिमम करंट इन केस ऑफ टी ए. व्हेन द टी इज गेटिंग ऑन, the current then the current I naught will start flowing. Now next point is, what is the minimum turn on time of main thyristor? Minimum turn on time of main thyristor, that is T1. What is the minimum turn on time of main thyristor? Because we know main thyristor कब से कब connect करता है? In mode 1, that is from 0 to pi. So one can easily obtain the equation for T1, that is by equating omega T1 equal to pi, and T1 can be written as pi by omega pi under root LC. Perfect. This is the minimum turn on time of main thyristor, that is the TM. This is very important. This is really very important expression. Next, what is the circuit turn of time? What is the circuit turn of time? Circuit turn of time, that is TCM. That is TCM. The time, the definition of the circuit turn of time will be the time for which the main thyristor is getting reverse bias. The time the time for which main thyristor is getting reverse bias, reverse biased. Okay, the time for which the main thyristor is getting reverse bias. This is the definition of the circuit turn of time. So how can I calculate the circuit turn of time? We know current across the capacitor is given by I equal to C dV upon dt. I equal to C dV upon dt. This is the expression for the current. So write dV equal to I into dt divided by C. Now integrate it. Now first of all, see the waveform, the duration of time for which the main thyristor is getting reverse bias. See here, for which duration the main thyristor is getting reverse bias. मेन थायरिस्टर कब तक ऑफ रहेगा? मेन थायरिस्टर तब तक ऑफ रहेगा, ठीक है. इनिशियली तो मेन थायरिस्टर मेरा ऑन था मोड 1 में. मोड 2 की जब कहानी शुरू होती है
तो मोड 2 की कहानी जब शुरू होती है तो इसकी पोलैरिटी -2 है क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है। तो इस माइनस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि मेन थैरिस्टर मेरा ऑफ है। तो ये कब तक ऑफ रहेगा? ये कब तक ऑफ रहेगा? ये कब तक ऑफ रहेगा? जब तक ये जो वोल्टेज है जीरो के बराबर नहीं हो जाता है। माइनस वी एस से, क्योंकि माइनस वी एस से लिनियरली इंक्रीज कर रहा है। अगर हम वेवफॉर्म देखें, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का वेवफॉर्म देखें, तो ये माइनस वी एस से धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ तक, अगर हम यहाँ तक की बात करें, ठीक है, तो इस ड्यूरेशन तक हम ये कह सकते हैं कि जो मेन थायरिस्टर है वो मेरा ऑफ रहेगा। क्योंकि जीरो के बाद जैसे ही वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो मिलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा और उसको हम ऑन कर सकते हैं बाय गिविंग द गेट पल्स। तो फ्रॉम माइनस वी एस टू जीरो फ्रॉम माइनस वी एस टू जीरो, क्योंकि ये वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का वेव फॉर्म है, तो इजिली हम कह सकते हैं फ्रॉम माइनस वी एस टू जीरो, ये माइनस वी एस है, minus Vs to 0, our main thyristor is getting reverse bias. So I will integrate from minus Vs to 0, and this duration of time will be called as the circuit turn of time. और इसी duration को हम लोग क्या कहेंगे? Circuit turn of time कहेंगे. That will be called as the TCM, circuit turn of time. So I will perform integration from 0 to TCM. तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? वी एस इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर कर देते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट आई? जीरो से अगर वी एस की बात करें, माइनस वी एस से अगर जीरो की अगर हम बात करें, माइनस वी एस से अगर हम जीरो की बात करें, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट कितना फ्लो कर रहा है कैपेसिटर के लो? माइनस ऑफ आई नॉट, यानी आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है ना, आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है। परफेक्ट। तो करंट भी कांस्टेंट हो गया, तो आई नॉट इंटू डी टी, and the limit for the time will be 0 to TCM. So this will give Vs equal to I naught divided by C into TCM. Now what is TCM? TCM कितना आ जाएगा? That is CVS divided by I naught. So this will be called as the circuit turn of time. ये क्या कहलाएगा? Circuit turn of time. This is a really very important expression. ये बहुत ही important equation है for calculating the value of the circuit turn of time. That is the TCM, that is CVS divided by I naught. Now next, what is the conduction time of TA? I think this is point number 4. Conduction time of TA. Conduction time of TA. What should be the conduction time of TA? कितने ड्यूरेशन तक TA कनेक्ट कर रहा है? कितने ड्यूरेशन तक TA कंडक्ट कर रहा है? तो टीए को हम लोग यहाँ से ऑन कर रहे थे, टीए को हम लोग यहाँ पे ऑन कर रहे थे, तो टीए कंडक्ट कर रहा है। अगर ये टीसीएम है, यहाँ से लेके यहाँ तक टीसीएम है, तो ये भी क्या है? टीसीएम है। तो वी कैन से ट्वाइस ऑफ टीसीएम, ट्वाइस ऑफ टीसीएम, क्योंकि टीए मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऑन है जब तक मोड 2 मेरा खत्म नहीं होता है। तो आई कैन इजिली से द कंडक्शन टाइम पीरियड ऑफ TA should be equal to twice of TCM, and we have calculated the value of TCM, that is CVS divided by I naught, divided by I naught. This is the conduction time of TA. Now next, the last point is the output voltage. Output voltage.
आउटपुट वोल्टेज। तो वी नॉट एवरेज को कैसे निकालेंगे? वी नॉट एवरेज आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। अगर इस आउटपुट वोल्टेज को वेवफॉर्म को देखें तो इजीली हम निकाल सकते हैं, इस ग्राफ का एवरेज निकाल सकते हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा और इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, है ना। इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा और इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। सपोज करो ये टोटल टाइम जो है टी ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट कर रहा है, टी, ठीक है। सपोज करो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, ये टी ऑन है। दिस इज टी ऑन, ये टी ऑन है, ठीक है। दिस इज टी ऑन, दिस इज टी ऑन। अगर हम टी ए को यहाँ ऑन कर दें टी वन पे, अगर हम अगर टी ए को हम यस, सपोज करो हम यहाँ पे टी ए को ऑन कर देते हैं। यहाँ के बजाय अगर यहाँ पे अगर हम टी ए को ऑन करेंगे तो ये जो ड्यूरेशन है ये टी ऑन कहलाएगा। टी ऑन कहने का मतलब जब तक मेरा मेन थैरिस्टर ऑन है, जब तक मेरा मेन थैरिस्टर ऑन है, जब तक मेरा मेन थैरिस्टर ऑन है, ठीक है। तो वो ड्यूरेशन जो है टी ऑन कहलाएगा। और यहाँ की बजाय अगर टी ए को हम यहाँ ऑन करते हैं, इफ़ टी ए विल गेट ऑन हेयर, इफ़ टी ए ऑन हेयर, अगर टी ए को हम यहाँ पे ऑन कर दें, ठीक है, यहाँ पे आफ्टर टी वन, तो हम ये कह सकते हैं तो ये वाला वेवफॉर्म जो है, ये वाला वेवफॉर्म शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला वेवफॉर्म शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज को हम डिफाइन कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज वी एस इंटू टी ऑन, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। वेवफॉर्म देख लो एक बार, वी एस इंटू टी ऑन, और ये वाला जो वेवफॉर्म है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस कितना हो जाएगा, अगर हम बेस की बात करेंगे, अगर हम बेस की बात करेंगे तो TCM, ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन कितना है यहाँ से यहाँ तक। अगर मोड 2 की बात करें तो पूरा का पूरा जो मोड 2 का ड्यूरेशन है वो ट्वाइस ऑफ TCM है ना, ट्वाइस ऑफ TCM है। तो ये बन जाएगा हाफ बेस ट्वाइस ऑफ TCM एंड हाइट इज ट्वाइस ऑफ VS। हाइट कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ VS। हाइट की अगर बात करें तो ट्वाइस ऑफ VS हो गया, डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VS टी ऑन प्लस ट्वाइस ऑफ TCM
और TCM हमने कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज CVS डिवाइडेड बाई I नॉट, VS divided by T. This is again the very important equation for the output voltage. For the output voltage, V naught average. तो आउटपुट वोल्टेज का एवरेज वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं. परफेक्ट. So this is very important equation for determining the output voltage, that is Vs T on plus twice of TCM Vs divided by total time period, divided by total time period, that is the T. परफेक्ट. तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा. तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास D, that is the voltage commutation circuit. We have discussed one by one in details, and all the concept were was very easy. तो अगर इसे ध्यान से अगर दिखा जाए तो काफ़ी इजी है ना. बस समझना पड़ता है, अच्छे तरीके से इसे कंसिडर करना पड़ता है. तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा. ठीक है. और अगली क्लास में जो भी गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेस्ड ऑन द क्लास D, बेस्ड ऑन द वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट, वो हम करेंगे. तो एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे. ठीक है. फिर आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं.